A very good morning to all of you. Hello students, once again we are back with one more video lecture number 3 this time for your class number 9, subject mathematics, chapter number 14, that is statistics. Dear students, I hope all of you are safe, all of you are doing homework and your classwork regularly. I am sure you must have referred the previous 2 videos, okay, and this is the third video that we are going to discuss today. When we met in the second video, we discussed about exercise 14.2. Name of the topic was presentation of data. First video lecture was about collection of data. Second was about presentation of data, if you remember it. उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नाम का टॉपिक सीखा था हमने. In today's video lecture, we are going to take third exercise, third topic. The name is graphical presentation of data. It is again presentation of data, but this time it is graphical presentation of data. In second topic, it was tabular presentation of data, and this is graphical presentation of data. So obviously, as the name suggests, we must require some graph paper. So when you are going for this topic, you must have graph book with you. If you don't have the graph book, you cannot do this topic. So you must have a graph book for this, right? So even though if you don't have the graph book, you can still draw it in your notebook page, but then it will not be perfect. So to draw the graphs perfectly, you must have graph book. So remember, do have a graph book before you start this one. Okay, let's discuss about this topic more in detail. As I said, there is one full exercise, third exercise 14.3, regarding this graphical representation of data. हमारे सिलेबस में in class 9 there are 3 types of graph which I had written over here. See the chart. Graphical presentation of data. 3 charts are there. Number 1, number 2, number 3. 3 charts are there. First is a very famous name जो आपको शायद पता है, bar graph, which you have done it in lower classes also. So first one is very much known to you. It is not unknown. Second name, histogram, is a bit new for you. I don't think you have heard the name, and if you have heard the name, it is very good. So second topic or second type of graph is histogram. Histogram. There are 2 flavors again in this histogram. One is equal class length, another is unequal class length. अगर तो ये है क्वेश्चन आपका इक्वल क्लास लेंथ वाला, फिर तो ये हिस्टोग्राम बिल्कुल बार ग्राफ जैसा बनेगा. हल्का सा चेंज आएगा, आई विल टेल यू, बट अदर देन दैट एवरीथिंग विल बी सेम, नो स्पेशल चेंज. बट इफ इट इज दिस वन, unequal class length, then there will be a problem. Problem means you need to do some calculation first. You need to make one new table in the answer, and then by using that table you can draw the graph. So if this is the case, it will increase your work a bit. And the third type of graph is frequency polygon. This is totally new for you, frequency polygon. Okay, I will teach you when the time will come that how to draw frequency polygon. So there are 3 types of graph: bar graph, histogram, and frequency polygon. We will start them one by one. For your easiness purpose, I have divided the full exercise into parts. मतलब मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि जो आप 14.3 हम करने जा रहे हैं, उसमें कौन से क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, कौन से क्वेश्चन इस टाइप के हैं, कौन से क्वेश्चन इस टाइप के. So whenever you are referring this video lecture of mine, what you should do is you should also write down this chart in your notebook. तो पता चले आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ग्राफ है. Like total 9 questions हैं exercise 14.3 में. उन 9 questions में से
question number 1, question number 2 and question number 3. These three are bar graph. Okay. Question number 4, question number 5, question number 8 and question number 9. These are the 4 questions of histogram. उन 4 क्वेश्चन में से भी जैसे मैंने कहा दो फ्लेवर हैं, इक्वल और अनइक्वल क्लास लेंथ, तो 4 और 5 इक्वल क्लास लेंथ के सम हैं एंड 8 and 9 अनइक्वल क्लास लेंथ के सम. Okay, so 2 graph each. And then last one, frequency polygon. 2 questions, question number 6 and question number 7. These are the 2 questions. So this is how the full exercise is divided. Total there are 9 questions in this exercise. Okay, so we'll take them one by one. Today in this video lecture we will discuss about 2 graph. One is bar graph, another is this one histogram, but उसमें इस फ्लेवर की बात करेंगे, इक्वल क्लास लेंथ. जब अगले चौथे वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तब इसकी बात करेंगे, अनइक्वल क्लास लेंथ वाला हिस्टोग्राम, और साथ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसकी भी बात करेंगे. So we have divided these 4 graphs into 2 video lectures. This one, number 3 video lecture, and then video lecture number 4. So in these 2 video lectures, we'll talk about this one. Okay. So first of all, let's start this first question. But one more thing I want to tell you people over here before I start drawing the graph. एक और चीज बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक तो ऊपर क्लियर लिखा होगा कि बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. सो ये तो डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन देख के कैसे पता चले कि 3 में से कौन सा ग्राफ बनाए. दिस विल नॉट बी द क्वेश्चन, दिस विल नॉट बी द डाउट. बट वन डाउट कैन बी देयर इन हिस्टोग्राम. जब क्वेश्चन में पूछा होगा तो उसमें इतना ही लिखा होगा कि हिस्टोग्राम बनाइए. Then how to identify? Is it this one or this one? Which case is this? तो वहां क्या करना है, आपको टेबल देखनी है. क्वेश्चन में एक टेबल दी होगी हर ग्राफ में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, हर ग्राफ में हर क्वेश्चन में एक टेबल दी होगी. उस टेबल को देखना है. अगर आप उस टेबल में अगर इक्वल क्लास लेंथ मतलब ग्रुप जो है वो ऐसे हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, you can see here the length, the gap is same. 0 to 10 means 10 gap is there. 10 to 20 again 10. 20 to 30 again 10. So gap is same. If that is the case, that means this is first flavor. And if this is the flavor, तो कुछ ऐसा होगा. 0 to 10, 10 to 12, 12 to 18. यहाँ आप देख सकते हो 10 का गैप है. यहाँ 2 का, यहाँ 6 का. So gap will vary. If that is the case, that means this is second flavor. इनमें तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर लिखा होगा ऊपर क्वेश्चन में कि ये ग्राफ बनाइए. 2 फ्लेवर तो उनमें है ही नहीं, एक ही तो फ्लेवर है. तो अगर हिस्टोग्राम पूछा जाए, then your first thinking, the first thought process must go to the question, and you should look at the table and you should identify that is it type 1 normal or is it type 2 a bit abnormal. Okay, so this you must remember that at the time of drawing the graph you first of all must identify it. Okay, so this was the all basic things that I wanted to tell you. Now let's start one by one. First of all, I am going for question number 1 of which exercise? Exercise 14.3. I am going for this question number 1, exercise 14.3. I am reading the question. Question says, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 years. ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है क्वेश्चन के लिए कुछ, अब मेन आ रहा है. Question number 1. Represent the information given graphically. ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, उसके ग्राफ बनाएं, बार ग्राफ बनाएं. और फिर एक और क्वेश्चन पूछा, अब जो 2 क्वेश्चन है वो तो बार ग्राफ बनाने के बाद आंसर करेंगे. तो पहले ग्राफ बना के, वेरी सिंपल वन. इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ क्वेश्चन की टेबल फटाफट से लिख दूं. अगर मैं क्वेश्चन की टेबल तो कुछ इस तरीके से. सबसे पहले दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन.
reproductive health condition. I'm writing in short because you have it everything in your textbook. Okay. Next one is neuropsychiatric conditions. So I'm writing NC here. Third one is injuries, cardiovascular conditions. So injuries is third one. Cardiovascular conditions is the fourth one. Respiratory conditions. So RC. And this one other conditions. So this is how table is given. Okay, ये अलग-अलग reasons हैं of death. The death may be because of this. The death may be because of this. So there are different reasons. And second column is given percentage. 31.8. Next one is 25.4. Next one is 12.4. Next one is 4.3. Next one is 4.3. Next one is 22.0. So these are the different percentage. If you will add all the percentage, it will give you totally 100. So out of 100 percentage death, 31 percentage death are because of this reason. 25 percentage death are because of this reason. This is how the data is given. And you need to draw which one? You need to draw bar graph for this. So let's start. I think you all must be knowing in your lower classes you must have heard. आपको बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है. This one is your graph paper suppose. तो क्या करना होता है पता होगा. एक लाइन छोड़ के यहाँ पे पहले ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लेनी है. फिर नीचे से भी एक लाइन छोड़ के आपको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है. So this is x-axis, this is y-axis. x-axis पे नीचे ये सब चीजें लिखनी है पहली और y-axis पे ये सब चीजें. तो नीचे तो सिर्फ लिखना है. They are words, they are not numbers. लेकिन on y-axis you need to take the numbers. तो proper scale लेना पड़ेगा. Scale यानी minimum से minimum कितना नंबर है 4.3 और maximum से maximum 31.8. तो 4.3 भी आ जाए 31.8 भी आ जाए ऐसा स्केल लेना है आपको. तो व्हाट कुड दैट बी स्केल? जैसे यहाँ 0 नंबर होता है. सो इफ यू गो लाइक दिस 5 10 15 20 25 30 35 40 तो भी चलेगा. If your graph paper is big and if you take the scale of 2, 4, 6, 8, that is also okay. तो और अच्छा परफेक्ट बनेगा. पर आ भी जाएगा सर 31.8 तो यहाँ जगह कम है. ग्राफ पेपर होता है तो ऐसे बड़ा होता है. So if you start like 2, 4, 6, 8, 10 तो I think आप पहुंच जाएंगे 32 तक. और because ये पॉइंट वाले नंबर हैं so I will advise you to take a gap of 2. It will be more perfect. आप अच्छे से ढूंढ पाएंगे ये कहाँ आएगा. Here it will be a bit difficult, but because the limitation of the board, I need to draw like this. So there is no logic that because I have taken the scale of 5, you are also supposed to take the scale of 5. No, no reason. You can take the scale of 2 also. You can take the scale of 1 also. But if you take the scale of 1, तो ग्राफ पेपर के बाहर चला जाएगा. So better you take the scale of 2. अब कितना सिंपल है. First one is which one? 31.8. So आपको यहाँ से एक ऐसे बार बनाना है जो 31.8 तक जाता हो. अब यहाँ तो मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ because I am not having the proper measurement. तो ये 30 है, ये 35 है, बीच में 5 गैप है. तो 31, 32, 33, 34, 35 मुझे जाना है 31.8 मतलब 32 के नजदीक कहीं कहीं. तो आपको ऐसे बनाना है ये पूरा चार्ट और ये ऐसे नीचे आ जाए. तो होता है ना ग्राफ में वो लाइनिंग खींची होती है ऐसे वर्टिकल. तो एक लाइन का आपको ये बार बनाना. ठीक है. अब सेकंड वन इज 25.4. सेकंड वन इज 25.4. सो 25.4 आपको वापस से अब एक लाइन का गैप छोड़ देना है बीच में और फिर बनाना है. तो एक लाइन का गैप छोड़ दूं यहाँ पे मैं और फिर 25.4 तक जाऊं मैं. यहाँ 26 होता है तो 25.4 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा. सो एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद ये है 25.4. लिख देना चाहिए 25.4 एंड दिस वाज 31.8 ऐसे लिख देना चाहिए.
अगेन एक का गैप छोड़ना है. देन नेक्स्ट वन इज 12.4. सो 12.4 यहां कहीं पे आएगा. सो आई एम ड्राइंग लाइक दिस 12.4. नेक्स्ट वन इज 4.3. 4.3 दो बार है 4.3. सो 4.3 विल कम समवेयर ओवर हियर. सो 4.3 again after leaving one line blank. 4.3. So 4.3, 4.3. You should write the numbers. And next one is 22. Perfect 22. So perfect 22 will come somewhere over here. So this is 22. So the bar graph is done. But you must write down these names. This was what? RHC. तो आपको ये नाम लिखना चाहिए. आपको नाम यहाँ लिखना चाहिए आइडियली RHC. बट कोई अच्छे डिजाइन के लिए यहाँ भी लिखते हैं पूरा नाम RHC. देन ऑल्सो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट. आप नाम यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, ये कोई नंबर तो है नहीं, कोई मेजरमेंट तो लेना है नहीं. सो इट इज फाइन वेदर यू राइट द नंबर्स नेम्स हियर और हियर, इट इज ऑल्सो फाइन. लाइक सेकंड नेम इज NC, so you can write down the name NC here also, or you can write down the name NC here also. It is perfectly fine, no problem. Okay, so you should write names in all, like IN, like next name is CCRC, and last one is OC. Here you should give the title. यहाँ टाइटल देना चाहिए कि ये सब क्या है, causes है, कारण है डेथ के, causes. और यहाँ जो हमने किया था वो था परसेंटेज. ये टाइटल्स कहाँ से देखने, ये टाइटल क्वेश्चन से देखने. क्वेश्चन में जो टेबल दी होगी 2 कॉलम वाली, तो जो पहली कॉलम का टाइटल है वो यहाँ लिखा जाएगा और दूसरी कॉलम का टाइटल है वो यहाँ लिखा जाएगा. आपको अपने हिसाब से टाइटल नहीं बनाने. ओके, सो दीज आर द 2 टाइटल्स. सो दिस इज इट. इससे ज्यादा कुछ और नहीं बताना है. बार बार आप ऑलरेडी बना चुके हैं आप लोअर स्टैंडर्ड में. एक बार फिर से मैंने आपको याद करवा दिया so that you can remember. Fine. So this is the first type of graph in our syllabus of 9. So I'm sure 3 questions were there. I taught you first question. I'm sure you can do second question and third question now, as they are very simple. Okay. So this was first topic, bar graph. Now we'll talk about, this is done. Now we'll talk about this one, histogram. In this histograph or histogram, today we'll talk about the first level, that is equal class length, and which is given in question number 4 of this exercise. So I'm looking at the question number 4 of this exercise. Question number 4 में भी हर बार की तरह एक टेबल दी गई है. वो टेबल क्या है मैं लिख देता हूँ. उसके अंदर कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, like 118 से 126, next है 127 से 135, next is 136 to 144, next is 145 to 153, next is 154 to 162, next is 163 to 171, next is 172 to 180. This type of classes are given. अब यहाँ क्लास होंगे. यही डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का. बार ग्राफ में यहाँ नाम दिए होते कुछ भी और यहाँ सिर्फ डिजिट थे. अब हिस्टोग्राम में दोनों जगह डिजिट होंगे, यहाँ भी डिजिट होंगे और यहाँ भी डिजिट होंगे. मतलब स्केल 2 बार लेना पड़ेगा, नीचे एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी 2 बार स्केल लेना पड़ेगा. और यहाँ कुछ नंबर दिए हैं, जो नंबर कुछ इस तरीके से हैं 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12 and 5, 4, 2. ये है क्वेश्चन और पूछा है ड्रॉ द हिस्टोग्राम. मैंने आपको कहा था हिस्टोग्राम आए तो सबसे पहले योर थॉट प्रोसेस मस्ट बी क्लासेस इक्वल लेंथ के हैं कि अनइक्वल है. सोचिए इक्वल है कि अनइक्वल है. इक्वल है. कैसे? गैप देखिए 118 to 126 तो 8 का गैप हुआ 8. यहां देखेंगे 127 से 135 ये भी 8 का गैप हुआ. यहां देखेंगे 136 to 144 ये भी 8 का हुआ. सो एवरी ग्रुप हैज अ गैप ऑफ 8. सो फाइन, आंसर ठीक है. ये ग्रुप सेम है, ठीक है, क्लास लेंथ इक्वल है. तो ये पहला फ्लेवर, नॉट द सेकंड. ओके,
तो ये नॉर्मल बनेगा बार ग्राफ की तरह, इसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी। कैलकुलेशन कब आएंगी? आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर ये अनइक्वल होती ग्रुप लेंथ, कभी 10, कभी 2, कभी 4, कभी 5, तो वो एक्स्ट्रा सम बनता के कुछ आंसर में गिनती करनी पड़ती, फिर टेबल पे से ग्राफ बनता। यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में टेबल है उसी पे से सीधा ग्राफ बन जाएगा, ज्यादा आपको गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गिनती करने की जरूरत अगले पीरियड में पड़ेगी या अगले ग्राफ में पड़ेगी। ओके, वो बात में सीखेंगे। अब एक और फाइनल चीज मैं कहना चाहता हूं जो याद रखिएगा, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन दिस क्लास आल्सो 9, आल्सो इन 10। एवरी टाइम, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पिछले वीडियो लेक्चर में हम कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आई टोल्ड यू every time class must be, if first is 0 to 10, second must be 10 to 20, मतलब पहला जहां पूरा हुआ second must start from there. But if you look at here, ये पूरा होगा 126 पे, ये start हो रहा है 127 पे, so this is not the table width what we want. तो जब भी ऐसा हो, अच्छा फर्क है ना, हिस्टोग्राम के दो फ्लेवर कौन से थे? इक्वल क्लास लेंथ और अनइक्वल क्लास लेंथ। तो ये अनइक्वल नहीं है, अनइक्वल से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जहां पूरा हो वहीं से शुरू होनी चाहिए, वो अनइक्वल नहीं है। अनइक्वल से तो मतलब क्या था कि यहाँ गैप 8 का है तो यहाँ 2 का हो, यहाँ 3 का हो, यहाँ 7 का हो, यहाँ वापस 8 का हो, वो गैप से मतलब है अनइक्वल। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसी सम के अंदर बता रहा हूं कि लेंथ तो इक्वल है 8 8 8 8 एवरी टाइम, बट प्रॉब्लम इज द फर्स्ट क्लास एंडिंग एट 126, so second must start at 126, but it is starting at 127. So if you find this type of thing in your question, then you should change the question a bit. बड़ी टेबल और कोई नहीं बनानी आंसर, वो तो इस लेवल में आएगी। अगर ये प्रॉब्लम है तो जरा सा क्वेश्चन की टेबल को सुधारेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे, सीधा ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो वो क्या सुधारेंगे? वो यही सुधारेंगे कि ये जहां पूरा हो वहां ये शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए एक फिक्स फंडा है जो 10th में भी आपको काम आएगा कि ऐसा कैसे किया जाए कि जहां ये पूरा हो वहां ये शुरू हो। तो उसके लिए आपको ये करना है कि हर क्लास में जो ये लोअर नंबर हो, छोटा वाला नंबर, उसमें से 0.5 ये फिक्स है, यही नंबर माइनस करना है, और जो हायर नंबर हो उसमें 0.5 प्लस करना है। लोअर नंबर में 0.5 माइनस करना है और हायर नंबर में 0.5 प्लस करना है। दिस इज फॉर एवरी क्लास। मतलब अगर मैं इस 118 पे से 0.5 माइनस करूं तो व्हाट आई विल गेट 117.5, 117.5, और इसमें मैं 0.5 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 126.5। यही काम यहां करना है। लोअर नंबर में से 0.5 माइनस करो तो 127 में से 0.5 माइनस करे यू विल गेट 126.5, और यहां 0.5 प्लस करें तो 135.5। वापस यहां करें वही काम तो यहां बनेगा 135.5, दिस इज 144.5, this will be 144.5, this is 153.5, this will be 153.5 to 162.5, this will become 162.5 to 171.5, this will become 171.5 to 180.5. No changes in this one, it will remain same. अब देखो तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फर्स्ट कहां पूरा हो रहा है 126.5, सेकंड कहां शुरू हो रहा है 126.5, so the problem is over. Look at every class 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, so our problem is over. So if you find this table, अगर ये सिंपल होती 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तो कोई चेंज नहीं करते, सीधा ग्राफ बना के, क्योंकि ये तो पहला फ्लेवर है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ टेबल देख के ग्राफ बनाना होता है। करना तो किसमें होता है? इसमें होता है, इसमें होता है, इन दोनों में कुछ करना पड़ता है। इन दोनों में कुछ भी नहीं करना पड़ता, सीधा क्वेश्चन देख के ग्राफ बनाना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को पहले ऐसे सॉल्व करें,
फिर ग्राफ बनाएं। तो याद रखें ये जो प्रॉब्लम है वो ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस तो अलग है। ओके, अब नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ की तरह ही बनेगा। बार ग्राफ और इसमें छोटा सा अंतर है, वो क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मान लीजिए दिस इज योर ग्राफ पेपर, दिस इज योर ग्राफ पेपर। ओके, सो आई एम ड्राइंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पिछली बार की तरह एक एक लाइन ऊपर नीचे छोड़ के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आई एम ड्राइंग। पिछली बार आपको याद हो तो यहाँ तो नाम आते थे, यहाँ नंबर आते थे, इस बार दोनों जगह नंबर आएंगे, दोनों जगह स्केल लेने हैं। पहले इनकी बात करें 117.5, 126.5, ये सब नंबर तो आपको लिखने हैं 117.5, 126.5, फिर है 135.5, next one is 144.5, next one is 153.5, next one is 162.5, next one is 171.5, and last one is 180.5. So I have written the numbers. एक बात का ख्याल करें यहाँ पे, जब भी आप यहाँ लिखते हैं ना तो गैप सेम होना चाहिए स्केल में। जैसे यहाँ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 9 का गैप होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 का गैप होता है, तो सब में सेम है। अब आप यहाँ क्या लिखते हैं, नॉर्मली हर बार 0 लिखते हैं। तो जरा कॉमन सेंस से सोचिए कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में बॉक्स में कितना गैप है 9 का, इसके और इसके बीच में भी कितना गैप है 9 का, इसके और इसके बीच में कितना गैप है 9 का। तो इन दोनों के बीच में कितना है, ये 0 और ये, इसके बीच में तो गैप हो गया 117.5। तो ऐसा चलता नहीं कि यहाँ पहले बॉक्स में इतना सारा गैप, बीच में फिर 9 गैप, ऐसा नहीं चलता। तो क्या करें, क्या और शुरुआत से नंबर लिखने हैं? नहीं, आपको यहाँ एक सिंबल बनाना है, ऐसा जिगजैग पैटर्न, इसको कहते हैं जिगजैग पैटर्न, या मैथमेटिकल नेम है इसका, मैथमेटिकल नेम किंग। किंग मतलब अ काइंड ऑफ अ खड्डा, एक खड्डा बनाया हमने। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 0 के बाद सीधा ये नंबर नहीं आता है, और भी पहले बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन वहां हमारा ग्राफ कुछ काम का है नहीं, अपना डेटा तो इसी में है, इसलिए हमने उस ब्लैंक पार्ट को दबा दिया और बाकी का जो पार्ट है वो दिखाया है। तो जरूरत पड़े तो ऐसा किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये नंबर का स्केल यहाँ लेना है। अब आइए दूसरे नंबर का स्केल लेते हैं। सबसे छोटे से छोटा नंबर है 2, सबसे बड़े से बड़ा नंबर है 12। तो आपको स्केल लेना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ग्राफ पेपर है तो आ जाएगा 12 तक। तो मेरे यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है, सो 2 4 6 8, आई एम टेकिंग द स्केल ऑफ 2, यू शुड टेक द स्केल ऑफ 1। ग्राफ पेपर में तो आ जाएगा 1 2 3 4 से करके। तो ये बना दिया, स्केल ले लिया। अब शुरू करते हैं। 117.5 से लेके 126.5 में कितना लिखना है, 3। तो आपको 117.5 वाला जो था उसमें 3, ये रहा 3 तक ऊपर जाना है और फिर नीचे आ जाना है, ऐसे। तो बार बन गया, बार ग्राफ जैसा ही है ये। अब एक छोटा सा अंतर है इसमें और बार ग्राफ में। बार ग्राफ में ये होता था कि एक बार बन गया, फिर एक स्पेस छोड़ते थे, फिर एक और बार बनाते थे, फिर एक और स्पेस छोड़ देते, फिर एक और बार बनाते थे। यहाँ ये नहीं करना है, यहाँ स्पेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप देखिए 117.5 से लेके 126.5, तो ये पहला है ना। अगर आप एक स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ से बनाएंगे मान लीजिए, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 135.5, मतलब फिर आपका ये तो बनेगा ही नहीं, दूसरा वाला तो। इसीलिए बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में चेंज ये है कि हिस्टोग्राम में बीच में स्पेस आप नहीं छोड़ेंगे, बार ग्राफ में जैसे छोड़ते थे, क्योंकि उसमें तो वहां नाम थे, कहाँ फर्क पड़ता था, नाम में थोड़ी कोई कंटिन्यू सीक्वेंस होती है जैसे इसमें है, इसलिए वहां जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत है। अच्छा, सेकंड कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो यही वाला खंभा आपको ऐसे ऊपर 5 तक लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है कुछ इस तरीके से। तीसरा है 9 तक, तो यही वाला खंभा, यही वाला बार जो पूरा हुआ है उसको आपको 9 तक लेके जाना है और फिर नीचे ऐसे पूरा कर देना है। फिर इसी को आपको 12 तक लेके जाना है, तो जहां आपने ये पूरा किया इसी को आपको 12 तक लेके जाना है और फिर ऐसे पूरा कर देना है।
नेक्स्ट वन 5 4 2, तो इसी को आपको 5 तक लेके जाना है, 5 तक मतलब यहाँ कहीं तक 5 तक लेके जाना है, फिर 4 तक, तो 4 तक मतलब यहाँ कहीं तक लेके जाना है, और फिर नेक्स्ट वन 2, तो इसको 2 तक लेके जाना है। तो कुछ इस तरीके का बनेगा। बन गया हमारा हिस्टोग्राम। वापस टाइटल देने, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन बोलता था कि ये लेंथ है, तो यहाँ दे दिया लेंथ, और क्वेश्चन बोलता था ये नंबर ऑफ लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स। तो ये क्वेश्चन देख के टाइटल देने, बन गया हिस्टोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, बार ग्राफ में हिस्टोग्राम में? बार ग्राफ में यहाँ नंबर नहीं होते, यहाँ स्केल नहीं लेना पड़ता, यहाँ कुछ नाम लिखे होते हैं, तो आप बीच में एक एक का गैप छोड़ सकते हैं या दो का गैप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हिस्टोग्राम में यहाँ भी नंबर होते हैं, यहाँ भी नंबर होते हैं टेबल में, तो दोनों जगह स्केल लेना पड़ता है हमको। और यहाँ कंटिन्यू क्लासेस होते हैं हर बार, मतलब एक जहां पूरा हुआ दूसरा वहां शुरू होगा, तो आपको भी एक बार जहां पूरा हुआ दूसरा वहीं से शुरू करना है, गैप नहीं छोड़ना है। ओके, so I hope all of you will be clear with this histogram. So if I rewind it, in this video lecture we have discussed about bar graph and also histogram of the first flavor. जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस सेकंड फ्लेवर, जहां थोड़ी गिनती करनी पड़ती है, फिर ग्राफ बनता है। ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसमें भी थोड़ी सी गिनती करनी पड़ती है, फिर ग्राफ बनता है। ओके, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी क्लियर। एक और लास्ट बात बता दूं, अगर इस टाइप की क्वेश्चन में बताया हो कि हिस्टोग्राम बनाओ, ये बनाने के बाद सिंपल से हो सकता है कभी क्वेश्चन आंसर पूछे हो, तो ग्राफ देख के क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। ओके, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। So with this, we wind up today's session. Homework for you people for today's session would be 2 ग्राफ। एक बार ग्राफ बनाना है आपको होमवर्क में, जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये है एक होमवर्क, और दूसरा होमवर्क है ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। 4th तो हमने किया, आपका है ये 5th नंबर का क्वेश्चन। So 2 sums, question number 2 बार ग्राफ and question number 5, which one? Histogram. This is your homework. Okay, so please do this homework, don't forget to do the homework. इससे अच्छी सी प्रैक्टिस होगी आपकी और कंसेप्ट और समझ में आएंगे। ठीक है, so we are winding up this session, अगली बार मिलेंगे तो और दोहरा लेंगे। तब तक के लिए thank you so much for everyone for watching my channel. Wish you a very good day, have a very good day, thank you so much, take care of yourself and your family. Please do not go outside your home because it's too dangerous situation. So stay home, stay safe, learn from the home and make yourself expert. Okay, thank you so much.